So now we start the next topic of haloalkanes is known as dihalogen compounds. Dihalogen compounds. That's compound in which have two halogen attached at same carbon atom or adjacent carbon atom. Okay, oh sorry. We discussed the dihalogen compounds. Dihalogen compound is that carbon in which two halogens are attached to the same carbon atoms or adjacent carbon atom is known as dihalogen compounds. Okay, then this type of dihalogen compound is known as geminal dihalide, which is already known, and this is the vicinal dihalides. Now we see the method of preparation of geminal dihalides. What is the method of preparation in which for this we discussion? Our first method is from aldehyde and ketone. From aldehyde and ketone. With the help of aldehyde and ketones, we can easily form the geminal dihalide with the reaction of phosphorus pentachloride. Okay. In this case, when we react aldehyde with PCl5, then it becomes RCH, Cl and Cl plus POCl3 molecule will be removed. Similarly, when ketone react with PCl5, it means phosphorus pentachloride, then it also becomes geminal dihalide, यानी कि geminal chlorides and POCl3. Okay, this is the simple, very simple reaction for this. For example, when CH3 COOH is react with PCl5, it becomes the 1,1-dichloroethane. It means CH3 CHCl 1,1 dichloroethane. It will be formed dichloroethane. Similarly, when cyclohexanone is react with PCl5, it also becomes 1,1-dichlorocyclohexane. 1,1-dichlorocyclohexane. In this case, and by this method, we can only form CCl bond. We can only form CCl bond. Means geminal dichloride we can only form, because only PCl5 and PF5 can exist, but not exist PBr5 and Pi5. This is the property of phosphorus. So this is not formed, and then after we cannot form the geminal dibromide and geminal diiodide by this method. By any other method we can form, but those are also not stable, because
at any one carbon, two bromine or two iodine attachment is very rare cases, because in this case steric hindrance is occur. Okay, then the other method for the preparation of geminal dihalide is from alkyne. With the help of alkyne, we can also form the gem dihalides. For example, when acetylene CH triple bond CH is react with hydrogen chloride, then at first step reaction only one pi bond is break and it becomes the CH2 double bond CHCl. Okay, now in the next case or in the next step, it follow the Markovnikov rule. And at that case, that carbon which have more number of hydrogen attached by hydrogen, and that carbon which have less number of hydrogen attached by halogens, and therefore the product is CH3 CHCl. Okay, this is the geminal dichlorides. Okay, in this case this product will be formed. If we take the unsymmetrical alkyne, for example CH3 C triple bond CH, at this case when react with HCl, then in this case first of all hydrogen attached this position and halogen attached this position, because we apply the Markovnikov rule. ओके, हियर यहाँ पर जो है कि पहले ही केस में मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, लेकिन इस केस में पहले वाले में, इस रिएक्टेंट में पहले वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तब अगले केस में यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तभी हो जाएगा CH3 CCl फिर डबल बॉन्ड CH2। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस आल्सो अप्लाई द मार्कोनिकॉफ रूल। HCl के साथ जब रिएक्शन होगा CH3 CCl सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर Cl हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। ओके, सिमिलरली in this case we also apply the Markovnikov rule and 2 molecule of HCl will be attached. Then this is also symmetrical cycloalkyne. Then at any carbon attached 2 hydrogens and another carbon is attached by 2 halogens. Okay, this type of reactant is formed. If this type of alkyne is present, C triple bond CH, and here is NO2, then this is the exception of Markovnikov rule, and in this case all minus charge is here is apply minus I effect, therefore all pi bonded minus charge shifted at that carbon, therefore H plus attached in the A number carbon attached at A carbon and Cl minus attached at B carbon, because NO2 attract the electron of pi bonded. NO2 attract pi bonded electron, therefore it becomes CH2 NO2 and CH double bond CH2Cl. And similarly next case also apply the Markovnikov rule. It means exception of Markovnikov rules, because in this case we can say that here is minus I also, here is also minus I, and here is also, both direction have minus I effect, but NO2 have strong minus I effect, therefore hydrogen is attached at that carbon and halogen is attached at B number carbon. Okay, then it becomes CH2 NO2 and CH2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हमने बना दिया है, CH2 and CL
Okay, this type of product is formed. This is the method of preparation of geminal dihalide. Now we see the method of preparation of विस्नल डाइहाइलाइड. विस्नल डाइहाइलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं. विस्नल डाइहाइलाइड्स. Vicinal dihalides. In this case, we form the vicinal dihalide also the two methods. Our first method is from alcohols. From alcohol we can form the vicinal dihalide. Sorry, alcohol नहीं लेंगे, glycol लेंगे. We take the glycol, GLYCOL, glycol. Okay, what is glycol? When vicinal alcohol is taken, for example CH2OH, then this is the known as glycol. This is the formula of glycol. Then when glycol is react with CH2OH, glycol is react with 2 molecule of PCl5, it becomes CH2 Cl CH2 Cl plus 2 molecule of POCl3 is released. Okay, then this type of reaction is known as glycol. Okay, now we see the another method of preparation of vicinal dihalide. For example, when alkene, मतलब from alkene के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं विस्नल एल्कोहल. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तभी आपका बन जाएगा क्या, CH2 और Cl. नो एनी अदर रिएक्शंस विल फॉर्म. इन दिस केस both Cl is opposite direction. It means trans to one there. CH2, one is below and other is above. This type is formed. Okay. Then this is the vicinal dihalides. Okay. Are you understood all? Yes, sir. Okay. Now we see the most important things. Actually geminal dihalide and vicinal dihalide is not too much important, but trihalogen derivatives is very much important. Derivatives, this is very important. Their example is CHF3, CHCl3, CHBr3 and CHI3. All are known as haloform. It means fluoroform, chloroform, bromoform and iodoform. Okay, this is very useful in many different fields in the just like medicinal field, industrial field, many different branches is used. This is okay. Chloroform, our first heading is chloroform, CHLOROFORM, chloroform. Their formula is CHCl3. Chloroform is used in anesthesia. In past few years, chloroform is used as anesthesia, but now we use the another
but now it use the another medicines because it is very harmful for human body. Okay, in this case chloroform is kept in lab. Chloroform is kept in lab in full bottle जस्ट लाइक ये आपका अगर बॉटल है तो इसमें हम पूरा का पूरा क्लोरोफार्म को भर करके रखते हैं, इसके एकदम पूरे मुंह तक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इसको हम कहाँ रखते हैं, डार्क में रखते हैं, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CHCl3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है फास्जिन गैस, COCl फास्जिन गैस बना लेता है। यहाँ से रिमूव होता है HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये जब फास्जिन गैस बनता है तो ये क्या होता है, ये एक पॉइजन होता है। दिस इज द पॉइजन। ओके, इसलिए क्लोरोफार्म को जब भी रखा जाता है तो इसको ब्लैक और ब्लैक या फिर ब्राउन बॉटल में करके डार्क में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रखा जाता है। तो ऑक्सीजन का अब्सेंस हम कैसे करेंगे, तो इसमें कंप्लीट बॉटल को पूरा का पूरा भर देंगे। बॉटल को हम कंप्लीटली फिल्ड करके रखते हैं, जिसके चलते कि इससे होने वाली परेशानी से बचा जा सके। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अब देखते हैं कि क्लोरोफार्म बनता कैसे है। इसका बनाने का प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफार्म। सिंपल भाषा में हम लोग बोलेंगे क्या, हेलोफार्म के द्वारा बनाया जाता है क्या चीज़, इसी से बनाया जाता है क्लोरोफार्म। और ये किससे बनेगा, तो ये आपको समझना होगा। सबसे पहले ये वाला टर्म जो है कि अब इम्पॉर्टेंट है, यानी कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा हम लोग हेलोफार्म बना सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि दैट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, वह आपका हेलोफार्म टेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, या फिर C+O CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, या फिर एक तरफ आप जो है कि 3 ही हाइड्रोजन रखिए, और इधर चाहे जो भी चीज़ आप लगा दीजिए, R कर दीजिए, दैट नॉट मैटर। तब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अल्फ़ा कार्बन है जिसके ऊपर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन है जिसके ऊपर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन है जिसके ऊपर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इस टाइप के जो रिजेंट होंगे, इट मीन्स रिएक्टेंट होंगे, वो आपके हेलोफार्म टेस्ट देंगे। इसके साथ साथ ऐसे एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज हो करके अल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन में बदले, जो कि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे कि ये, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तब ये किस में बदलेगा, ये आपको बदलेगा CH3 C+OH में, जिसके कारण से कि ये आपका हेलोफार्म टेस्ट देगा। इसी के साथ साथ अगर हम और देखें तो बोल सकते हैं CH3 CH, और यहाँ पर OH कर देते हैं, और यहाँ पर CH3 कर देते हैं। तो ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका ऑक्सीडाइज होकर के और किस में बदल जाएगा, CH3 C+। कैसे ऑक्सीडाइज होगा ये चीज़ें भी हम बाद में बताएंगे। तब ये आपका हो जाएगा जिसके अंदर क्या है, अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका हेलोफार्म टेस्ट देगा। सिमिलरली
अगर हम कोई और एल्कोहल के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर OH कर देंगे, यहाँ OH। अब यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस लगा दें, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, तो ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्योंकि जब इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हो जाएगा ये और ये R। तब इस केस में इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, जिसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये प्रोसेस समझ में आया कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन हम लोग देख भी सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे हेलोफॉर्म टेस्ट से। एक सेकेंड, अभी मैं देख करके आगे बताता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हेलोफॉर्म टेस्ट पर क्वेश्चन ही ना हो। क्यों नहीं दिख रहा है? इसमें कोई क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि इसके ऊपर क्वेश्चन भाई, हाँ ये है, देखो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन। एसीटोन से हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन एंड एसीटोन के साथ और क्या चीज़ लेते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, है ना। तो ये लोग क्वेश्चन है कि एसीटोन से, जैसे कि एसीटोन का मतलब CH3 CO और CH3, इसके ऊपर और क्या चीज़ लेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तब इसके ऊपर हमें लेना पड़ता है C नंबर क्लोरीन गैस, Cl2 गैस लेते हैं, तब ये जो है कि आपका बनता है, क्या बनता है, इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं हेलोफॉर्म। कैसे बनेगा, तो इसके द्वारा रिएक्शन करके बनता है सबसे पहले क्लोरल का मतलब, सॉरी ये क्लोरल नहीं बनता है, इस केस में क्लोरीटोन बनता है, CCl3 एंड COCH3, इसका नाम होता है क्लोरीटोन, CHLORITONE, क्लोरीटोन बनता है। इसके ऊपर जब हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये CHCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHCl3 में। तो इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं क्या, हेलोफॉर्म बना सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इधर आते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तब आपका ये हेलोफॉर्म बनाने के लिए 4 स्टेप का यूज किया जाता है। जब एल्कोहल होगा तब उस केस में 4 स्टेप का यूज करेंगे, और जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा, जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा, तब हम लोग 3 स्टेप का यूज करते हैं। ओके, और इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स, सॉरी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इजी वाला स्टेप लेते हैं, जो कि 3 स्टेप है उसमें, है ना। सबसे पहले हम लोग फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा देखते हैं कैसे आपका क्लोरोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म बनेगा। देखो हम हेलोफॉर्म के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी चीज़ के लिए पढ़ लेंगे, यानी कि आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये दोनों के लिए भी पढ़ लेंगे, है ना। इस केस में स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट CaOCl2, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करके और बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। यहाँ से हमें प्राप्त होता है Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। अब स्टेप सेकेंड, जो आपका ये क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ है, इस क्लोरीन गैस का हम रिएक्शन कराते हैं अब एल्डिहाइड पर या कीटोन पर। तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड पर देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसके ऊपर सबसे पहले रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस का। कितने क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर लगेंगे? तो यहाँ पर आपके 3 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल लगते हैं और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करके लगा दिया जाता है C डबल बॉन्ड OH। इसके साथ साथ यहाँ से 3 HCl मॉलिक्यूल बाहर और 3 HCl मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और यहाँ पर 3 Cl लग जाता है CCl3। इस प्रकार से ये आपका फॉर्म होता है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं क्लोरल, CHLORAL, क्लोरल इसका नाम होता है। ओके, अब नेक्स्ट केस में इसका हम लोग स्टेप 3 में इस क्लोरल के ऊपर जो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था उसका रिएक्शन कराते हैं, अर्थात CCl3 C डबल बॉन्ड OH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन होता है। तो अब जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो एक खास चीज़ बनता है और वो क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल आते हैं रिएक्शन करने, और जब 2 मॉलिक्यूल आएंगे रिएक्शन करने तब ये रिएक्शन करके बनाता है CaO C डबल बॉन्ड OH का होल ट्वाइस प्लस 2CHCl3। ओके, इट मीन्स hydrogen is shift to the carbon and oxygen is attached with here and it form the this type of product calcium formate। इसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट होता है और ये बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कीटोन लेते हैं तब क्या होता है? जब हम लोग कीटोन लेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा, बस आपका थर्ड प्रोसेस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में आपका क्लोरल के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे और यहाँ से ये बन जाएगा आपका क्या? Cl2। अब ये Cl2 रिएक्शन करेगा किसके ऊपर? स्टेप 2 में Cl2 रिएक्शन करेगा कीटोन के ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके ऊपर रिएक्शन करेगा क्लोरीन का। जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा तब ये आपका बदलेगा CCl3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3 प्लस 3HCl। इसका नाम होता है क्लोरीटोन, CHLORITONE, क्लोरीटोन। अब इस क्लोरीटोन पर स्टेप 3 में रिएक्शन होता है अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब इसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा यानी कि CCl3 फिर C डबल बॉन्ड OCH3 के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन होगा तब इस केस में हम लोग इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब H और CCl3 मिल करके बना लेंगे 2H है 2CHCl3 है, तब ये बन जाएगा आपका 2CHCl3 प्लस CaO, हम वाइट कलर्स दिखाते हैं, ब्लू कलर्स दिखाते हैं, CaO और यहाँ से OCH3 आपस में अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा। तब ये आपका बन जाएगा Ca फिर ये O, ये वाला O ये है, फिर CO और CH3
इस प्रकार से ये आयोनिक कंपाउंड बनता है का होल ट्वाइस हो जाता है, यानी कि इसका नाम इस केस में हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट हो जाता है। ओके, और ये आपका बन जाता है क्लोरोफार्म। अगर हम लोग ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफार्म बनता, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनता है आपका क्लोरोफार्म। तब इसके बारे में यदि हम ऑब्जर्व करें तब ये क्या होता है देखते हैं। इसके केस में भी सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 में वही ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। इन दिस केस आपसे इसी बार नीट एग्जाम में पूछा गया था। नीट का स्पेलिंग गलत है, NEET होता है। जब स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहे हैं तो कैसे एग्जाम निकलेगा। नीट 2025 में पूछा गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर में, बोलो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर? Can you reply? Yes, sir. Yes, please tell. Sorry, sir. What is the oxidation number or oxidation state of Cl in bleaching powder? One. Actually, oxidation number is not 1, 2, 3. Oxidation number is represented with sign, plus sign or minus sign. +1. No, +1 is you right, but here is 2 oxygen and both 2 oxygen have different oxidation state. Actually, +1 and -1. yes. Actually, their structure is CaOCl and Cl, and we know that calcium is S block group 2 element, then their oxidation state is fixed 2+, and oxygen oxidation state is 2-. Then chlorine oxidation state here is 1- and here is 1+. Okay, this is the oxidation state. Now it's not our point. Our point is formation of calcium hydroxide and chlorine gas. Then here also react with bleaching powder and water and it converts into calcium hydroxide plus Cl2. In this case we ignore the stoichiometry and valency and there इस केस में हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन करा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन की ज़रूरत पड़ता है तो इस केस में हमें बहुत सारे कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आपको हर जगह इग्नोर करता हुआ दिखेगा। अब स्टेप 2 में क्या होता है ना, हम लोग जो चीज़ अभी तक नहीं देखते हैं, अब इस केस में ऐसे एल्कोहल लेंगे जो कि आपका क्लोरोफार्म बना सके। तब इस केस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल के ऊपर सबसे पहले क्लोरीन का रिएक्शन होता है और इसको कन्वर्ट करता है एसिटाल्डिहाइड में, यानी कि CH3 C+OH। इस केस में ये सबसे पहले बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है 2HCl, एक हाइड्रोजन और यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन मिल करके 2HCl बाहर निकलते हैं और ये आपका बनता है क्या चीज़, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और आपका बन जाता है 2HCl। अब इसके ऊपर स्टेप 3 में होता है नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 C+OH के ऊपर 3 Cl2 अब रिएक्शन करते हैं और ये बनता है अब CCl3 और CHO। अब नेक्स्ट स्टेप 4 आप जानते ही हो कि स्टेप 4 में क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम डिफरेंट प्रकार का एल्कोहल ले लें, एक और डिफरेंट प्रकार का, फॉर एग्जांपल यदि हम CH3 CH2 एक सेकेंड CH3 CHOH एंड CH3 ले लें, इस केस में सबसे पहले क्या होता है कि जो ये Cl2 है वह इसको कन्वर्ट करता है कीटोन में, ऑक्सीडाइज करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से 2HCl बाहर। अब अगले स्टेप में यहाँ पर फिर से रिएक्शन होता है किसका, 3 क्लोरीन का, 3Cl2 का, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, CCl3, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 में, 3HCl बाहर। अब इसके ऊपर हमें रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तब इसके 2 मॉलिक्यूल आते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं CHCl3 प्लस ये हो जाता है आपका CaO, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 में, कैल्शियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आर यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरोफॉर्म। नाउ we see the physical property. Physical properties of chloroform. पहला फर्स्ट नंबर है, यह एक क्या होता है, यह एक कलरलेस और स्वीट स्मेल वाला लिक्विड होता है, स्वीट स्मेल वाला लिक्विड होता है। ओके, इसका ये कलरलेस होता है, जब इसको हम लोग स्मेल करते हैं तो ये क्या आता है, स्वीट जैसा आता है, लेकिन इसको स्मेल नहीं करना होता है। इसको स्मेल करने के बाद जो है कि 10 मिनट के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना, इसलिए इसको स्मेल नहीं करना होता है। सेकंड ये है, ये जो है कि वाटर से हैवियर होता है ना, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इट्स डेंसिटी इज हायर देन H2O। जब इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तब ये वाटर से क्या होगा, हैवी होगा। तब इसका डेंसिटी देखो, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म होता है आपका, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, बस आप देख लीजिए 1.485 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज दिस, बट यू कैन मेमोराइज दिस। डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इज हायर देन water and therefore it is heavier than water. Third point is, it is less soluble in water but more soluble in organic solvent. H2O में यह कम soluble होता है। solubility का अगर हम लोग देखें तो H2O में कम soluble होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन, दिस इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, एंड क्लोरोफॉर्म इज आल्सो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ये आपका थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी था। और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका इसका, यह जो है कि नॉन इन्फ्लामेबल होता है। यह नॉन इन्फ्लामेबल होता है, इन्फ्लामेबल इट मीन्स यह जलता नहीं है, लेकिन इन्फ्लामेबल लिक्विड है। बट इसका जो वेपर है, इसका जो वेपर है वह ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है, बट वेपर्स बर्न विथ
ग्रीन फ्लेम, ग्रीन फ्लेम। ओके, इसका जो वेपर है वो ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। आर यू अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी। नाउ we see the chemical properties. What is the chemical properties of क्लोरोफार्म? क्लोरोफार्म का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है? देन इट्स फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन। इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ही इसकी इरर है, मतलब इसकी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है फास्जिन गैस में, है ना। क्लोरोफार्म जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, सनलाइट और ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन अगर बॉटल में है भी, सनलाइट का मतलब थोड़ा सा रोशनी रहेगा तो भी हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर किसी भी बॉटल में इसको अगर हम रखेंगे तो उस केस में अगर एकदम थोड़ा सा जगह भी खाली रहेगा तो उस जगह पर ऑक्सीजन फिलअप रहेगा। तो अगर जैसे ही सनलाइट आएगा तो तुरंत वह किस में कन्वर्ट होने लगेगा? फास्जिन गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। अर्थात ये ऑक्सीजन, सनलाइट प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फास्जिन गैस बनाता है, फास्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि इसका हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं, CH Cl3 प्लस हाफ O2 एंड HNu के साथ रिएक्शन करके ये आपका बना लेता है COCl2 प्लस HCl, यहाँ से बाहर हो जाता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगता है, जिसका कि हम स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OCl Cl, यही क्या है? फास्जिन है, PHOSGENE। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2CHCl3 प्लस O2 प्लस HNu, इट बिकम्स 2COCl2 प्लस 2HCl। दिस इज द रिएक्शन। ओके, इसके चलते अब इससे बचने का क्या कारण है? इसको हम ऑक्सीडेशन होने से कैसे बचाया जा सकता है? हाउ टू प्रिवेंट द क्लोरोफार्म विथ द ऑक्सीडेशन, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसको हम लोग डार्क, हमने जो स्टार्टिंग बताया था, डार्क ब्राउन कलर के बॉटल में, डार्क ब्राउन बॉटल में कंप्लीट फिल्ड करके रखेंगे, है ना। डार्क ब्राउन बॉटल फिल्ड अप टू ब्राइम। ब्राइम का मतलब पूरे मुंह तक इसको भर करके रखेंगे। ओके, या फिर एक और तरीका है इससे बचने का कि इसके अंदर, अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग बी नंबर में है कि इसके अंदर अगर हम लोग 1% एथाइल एल्कोहल को ऐड कर देते हैं, 1%, एक सेकेंड, 1% एथाइल एल्कोहल को ऐड कर देते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो फास्जिन गैस बन चुका है उसको ये कन्वर्ट कर देता है आपका एक कंपाउंड में। ये कंपाउंड कौन सा होगा? एथिल कार्बोनेट में। इसको एक कन्वर्ट कर देता है किस में? एथाइल कार्बोनेट में, जिसके चलते कि इसका जो पॉइजनिंग बिहेवियर है वो खत्म हो जाता है ना। 1% एथाइल एल्कोहल को अगर इसमें मिक्स करके रखें तो जो आपका COCl2 फास्जिन गैस बन चुका है यह आपका खत्म हो जाता है। C2H5OH के साथ जब रिएक्शन होगा तब ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OC2H5 एंड OC2H5, ओके, प्लस 2HCl, 2 HCl में ये कन्वर्ट होता है। आया समझ में? तो इसका नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है एथाइल कार्बोनेट। तो जब ये एथाइल कार्बोनेट बन जाएगा
तब इसका पॉइजनिंग बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ये पॉइजन नहीं है, बट फास्जिन गैस क्या है, पॉइजन है। ओके, नाउ we see the next properties। पहला प्रॉपर्टी था इसका ऑक्सीडेशन, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट या फिर रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर में भी देखने को मिलता है ना। इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग 1 डिग्री एमाइन के ऊपर क्लोरोफार्म का रिएक्शन कराते हैं CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके, तो इस केस में आपका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में आपका वेरी बैड स्मेल का एक कंपाउंड बनाता है। इस केस में आपका बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, जिसका कि वेरी बैड स्मेल होता है। वेरी बैड स्मेल होता है, जिससे कि हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो हमने एमाइन लिया था वह कौन सा है, वह 1 डिग्री एमाइन है। यह 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम लोग RnH2 लेते हैं जिसका नाम क्या है 1 डिग्री एमाइन, तब इस केस में क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके बनाता है R, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो N और C, यहाँ से कार्बन आकर के RNC बन जाता है। यहाँ से बाहर निकलता है 3KCl और फिर बाहर निकलता है आपका 3H2O, ये आपका बाहर निकलता है। ओके, और ये आपका क्या बन जाता है RNC, इसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट या फिर एल्काइल आइसोनाइट्राइल। एल्काइल आइसोनाइट्राइल इसका नाम होता है। ओके, इस प्रकार से तब ये आपका ये चीज़ फार्म होता है। इस केस में ये जो है कि इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा बैड होता है, थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ आपका बनता है। और इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं 1 डिग्री एमीन का टेस्ट कर सकते हैं, और ये क्लोरोफार्म है कि नहीं ये भी टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने बनाया क्लोरोफार्म लैब में, जो हमने ऊपर मेथड बताया उसके द्वारा हमने क्लोरोफार्म बनाया, लेकिन वो क्लोरोफार्म बना ही नहीं, या फिर क्लोरोफार्म बना है कि नहीं इसको कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे, तो 1 डिग्री एमाइन के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, तभी आपका एल्काइल आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनेट बनता है। इसका मतलब कि वो 1 डिग्री एमाइन है। अगर नहीं बनता है तो ये 1 डिग्री एमाइन नहीं है। ठीक है, ये वाला आपको रिएक्शन समझ में आया? यस सर। ओके, अब इसका हम लोग यूजेज देखते हैं कि क्या क्या क्लोरोफार्म का यूजेज होता है। एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ का कोई ना कोई यूज होगा, तो उसके बारे में हम लोग को देखते चलना है ना। ये जो है कि एक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। किस चीज़ के लिए सॉल्वेंट है ये? फैट के लिए, फैट के लिए, वैक्सेज को डिजॉल्व कर देता है, यानी कि रबर को डिजॉल्व कर देता है। इसके साथ साथ आपका रेजिन्स को डिजॉल्व कर देता है। इसके साथ साथ ये आपको रबर को भी, मतलब कि आयोडीन को भी डिजॉल्व कर देता है। आयोडीन को भी डिजॉल्व कर देता है, जिसके चलते कि क्या होता है वेरी बेस्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इसको जाना जाता है। ओके, अच्छा, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड इसका यूज है कि ये जो है कि मेडिसिन्स को बनाने में काम आता है। इसका यूज़ किस में होता है? मेडिसिन्स बनाने में। कौन सा मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है? एक सेकेंड, हमने शायद वहाँ पर आपको फार्मूला थोड़ा सा गलत बता दिया है। क्लोरिटोन का वो फार्मूला नहीं होता है, एक दूसरा फार्मूला होता है। क्लोरिटोन एक ड्रग है, इसका मैं आपको कल फार्मूला बताता हूँ। इसके द्वारा जो है क्लोरिटोन नाम का मेडिसिन बनाया जाता है। ओके,
और इसके साथ साथ क्लोरोपिक्रीन नाम का मेडिसिन इसके द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोफार्म के द्वारा। ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका थर्ड यूज है जो अभी हमने टेस्ट देखा था 1 डिग्री एमाइन का, इसके द्वारा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये थर्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है। इसको जो है कि पहले के समय में एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अब इसके द्वारा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि इसके द्वारा कौन कौन सा टेस्ट होता है क्लोरोफार्म के द्वारा। तो इसके द्वारा सबसे पहला टेस्ट होता है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन्स टेस्ट, जो कि अभी हमने देख लिया। सेकंड इसमें टेस्ट होता है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिजेंट, है ना। ये आपका देखने को मिलता है। इसके अंदर थर्ड है आपका, थर्ड टेस्ट है कि जो प्योर क्लोरोफार्म होता है, जब हम लोग प्योर क्लोरोफार्म लेते हैं CHCl3, तब इसके ऊपर AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, जब ये आपका प्योर फॉर्म में रहेगा, तब जब इसके ऊपर AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो AgCl का वाइट PPT नहीं प्राप्त होगा। AgCl का वाइट PPT नहीं प्राप्त होगा, है ना। इन जनरली क्लोरीन के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके आपका AgCl बनाता है, लेकिन जब क्लोरोफार्म होता है प्योर फॉर्म में, तब ये AgCl नहीं बनता है, क्योंकि जब हम लोग प्योर फॉर्म में लेंगे ना, तो कार्बन से क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिसके चलते कि इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन भी नहीं शो करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपका होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइडोफार्म। आइडोफार्म छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट, तो फिर इसको हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं कि कौन आइडोफार्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो दैट्स एल्डिहाइड आर कीटोन विच हैव दिस टाइप ऑफ ग्रुप। एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास इस टाइप का ग्रुप होगा, वह आपका क्लोरोफार्म टेस्ट देगा। या फिर ऐसे एल्कोहल या फिर दैट्स एल्कोहल विच हैव दिस टाइप ऑफ ग्रुप CHOH। यहाँ पर क्या लगा है नहीं, मतलब ये आपका एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल कौन सा हो सकता है, ये आपका एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है। तो जिसके अंदर इस टाइप का ग्रुप होगा वो भी आपका क्या करेगा, आइडोफार्म टेस्ट देता है। तो इस केस में आइडोफार्म टेस्ट कैसे होता है, तो इसका एक दो रिएक्शन देख लेते हैं कैसे यहाँ पर ये रिएक्शंस होगा। जब हम लोग एसीटोन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ, तो सबसे पहले जो वहाँ पर रिएक्शन होता है सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बदल जाता है आपका CI3। आइडोफार्म टेस्ट आपके एग्जाम में पूछता है CI3, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनता है फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या होता है कि अब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaOH का। तो यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब इसके 4 मॉलिक्यूल आते हैं। एक सेकेंड रुको, एक्चुअल में इसका थोड़ा सा चेंजिंग होता है रिएक्शन। एक सेकेंड फिर से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिएक्शन होता है 3I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये रिएक्शन करके 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं। ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके
आपका फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट मैं बना देता हूँ CH3 प्लस CH3 COONA प्लस 3NaI में कन्वर्ट होते हैं। ओके, 3NaI सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट होते हैं। अब हम लोग इसको सिंपल स्टेप के द्वारा समझते हैं। जब हम लोग एसीटोन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं 3I2 प्लस NaOH के साथ, यहाँ पर सबसे पहले 3 NaOH मॉलिक्यूल आता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होता है तब ये बनता है CI3 फिर C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3NaI एक सेकेंड 3NaI प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पर अब रिएक्शन होता है NaOH का, और जब यहाँ पर लास्ट स्टेप में जब NaOH का रिएक्शन होता है तब इस केस में आपका बनता है CHI3 प्लस NaOC डबल बॉन्ड O एंड CH3 सोडियम एसीटेट। यहाँ पर इस प्रकार से आयोडोफॉर्म बन जाता है। ओके, आयोडोफॉर्म बन जाता है। तो ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि कौन कौन ऐसे रिजेंट होंगे जो आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये था आज का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है क्या, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, Okay, sir. टुडे ऑल टॉपिक आर यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? No, sir. ओके, जो तुम बुक बोल रहे थे हमें मैसेज करके ना, वो वाला बुक जो है कि अभी आया नहीं है, मतलब कि PDF फॉर्म में नहीं आया है, जो लेटेस्ट वाला बुक बोल रहे थे। एक्चुअली जो हमने आपको फॉरवर्ड किया उसमें 2024 तक का क्वेश्चन दिया है, उसके बाद का क्वेश्चन नहीं दिया था। हम आपको 2025 का पेपर सबमिट कर देंगे, भेज देंगे। तो बाकी जो है कि आपके पास 2024 तक का तो सभी क्वेश्चन है ही, तो उसको लगाओ, है ना? आर यू अंडरस्टूड और नॉट?